آج کے اس دلچسپ اور معلوماتی جائزے میں خوشامدید۔ چلیے سیدھے اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ کیا کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ کسی کو کوئی بات سمجھ آنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہو اور وہ ایسے دیکھ رہا ہو جیسے کسی بالکل ہی دوسری دنیا کی زبان بولی جا رہی ہو؟ ایک عام سی بحث اور پھر وہی نہ ختم ہونے والا چکر کہ میں نے تو یہ کہا تھا اور تم نے وہ سن لیا۔ یہ فرسٹریشن، یہ الجھن، یہ ایک ایسا تجربہ ہے جس سے ہم سب روزانہ گزرتے ہیں۔ آج ہم تھامس ایرکسن کی مشہور کتاب سراؤنڈڈ بائی ایڈیٹس یعنی بے وقوفوں کے درمیان اس کے خلاصے کو ایک نہایت ہی دلچسپ کہانی کی طرح سمجھیں گے۔ یہ صرف خشک حقائق نہیں ہے بلکہ انسانی نفسیات اور رویوں کو سمجھنے کا ایک زبردست سفر ہے۔ کیا واقعی ایسا لگتا ہے کہ ارد گرد موجود سب لوگ کسی اور سیارے سے آئے ہیں؟ یہ سوال دراصل ہمارے روزمرہ کے مسائل کی بالکل صحیح تصویر کشی کرتا ہے۔ کبھی دفتر میں باس بلا وجہ غصہ کر دیتا ہے، کبھی گھر میں پارٹنر سیدھی سی بات کا بالکل ہی غلط مطلب نکال لیتا ہے، یا کوئی پرانا دوست ایک معمولی سے مذاق کا برا مان کر بیٹھ جاتا ہے، اور پھر ذہن میں بس یہی سوال گونجتا ہے کہ کیا خرابی اپنی بات میں ہے یا واقعی یہ پوری دنیا ہی پاگلوں اور بیوقوفوں سے بھری ہوئی ہے؟ تھامس ایرکسن کے ساتھ بھی بالکل یہی ہوا تھا۔ انہیں بھی لگا کہ وہ ایسے لوگوں میں گھرے ہیں جو ان کی بات کبھی نہیں سمجھتے، لیکن اصل مسئلہ کسی کے بیوقوف ہونے میں نہیں ہے بلکہ بات کو پروسیس کرنے کے بالکل مختلف طریقوں میں ہے۔ آئیے جلدی سے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کن 6 اہم حصوں پر بات کریں گے۔ پہلا، گفتگو کا فریب۔ پھر ہم ذہن کے 4 کمروں میں جائیں گے: سرخ یعنی تیز اور پرعزم، پیلا یعنی پرجوش اور تخلیقی، سبز جو پرامن اور صابر ہے، اور نیلا جو کہ منطقی اور محتاط ہے۔ اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ ایک بہترین ہم آہنگی کے لیے ان رنگوں کو ملانا کیسے ہے۔ تو پہلا حصہ، گفتگو کا فریب۔ ہم ایک دوسرے کو غلط کیوں سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ بالکل نہیں ہے کہ لوگ کم عقل ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے دماغوں پر مختلف رنگوں کے فلٹرز لگے ہوئے ہیں۔ جب کوئی دوسرا ہماری طرح برتاؤ نہیں کرتا تو ہم اسے فوراً عجیب یا پریشان کن سمجھ لیتے ہیں۔ ایک تیز بولنے والا شخص کسی خاموش انسان کو دیکھ کر سوچتا ہے کہ یہ اتنا سست کیوں ہے، اور وہی خاموش انسان سوچتا ہے کہ یہ شخص اتنا شور کیوں مچا رہا ہے۔ اصل میں غلط کوئی بھی نہیں ہے، بس سب کی سوچنے کی فریکوینسی اور رفتار مختلف ہے۔ یہاں مصنف ایک بہت ہی طاقتور نظریہ پیش کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ گفتگو ہمیشہ سننے والے کی شرائط پر ہوتی ہے، بولنے والے کی نہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ہم نے تو بات بالکل صحیح اور لاجک کے ساتھ کی تھی، تو سامنے والے نے اسے غلط کیوں سمجھا؟ کیونکہ کمیونیکیشن کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کیا کہا گیا، بلکہ یہ ہے کہ سامنے والے نے اپنے فلٹر سے گزار کر کیا محسوس کیا۔ مثال کے طور پر کوئی تھکا ہارا دفتر سے گھر آتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے آج بڑی دیر کر دی۔ اب وہ اپنے تھکاوٹ والے فلٹر سے سنتا ہے کہ تمہیں گھر کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ جواب دیتا ہے ٹریفک بہت تھا، اور پھر سننے والے کو لگتا ہے کہ یہ تو بہانے بنا رہا ہے۔ دونوں اپنی جگہ بالکل سچے ہیں، لیکن وہ الگ الگ زبانیں پروسیس کر رہے ہیں۔ اور ایسی الجھن کو، اسی روزمرہ کی فرسٹریشن کو دور کرنے کے لیے DISC یا DISC ماڈل کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ ماڈل انسانی رویوں کو 4 مختلف اور دلچسپ رنگوں میں بانٹتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے، یہ رنگ کسی کا IQ یا ذہانت نہیں ماپتے، یہ صرف اور صرف یہ بتاتے ہیں کہ انسان کا رویہ، اس کا غصہ، اس کی خوشی اور اس کا رد عمل کیسا ہوگا۔ دنیا میں ایڈیٹس کی کوئی الگ سے نسل نہیں ہے، بس یہ 4 رنگ ہیں، اور ہر انسان کی شخصیت پر ان میں سے کسی نہ کسی رنگ کا غلبہ ضرور ہوتا ہے۔ چلیں اب دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سرخ رنگ، تیز، پرعزم اور کسی بھی گروپ کا انجن۔ اب ہم پہلے نفسیاتی کمرے کا دروازہ کھول رہے ہیں۔ یہ سرخ رنگ کی دنیا ہے، اور یہاں آپ کو جوش، طاقت اور زبردست کنٹرول ملے گا۔ اس شخصیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنی سوچ کی رفتار تھوڑی تیز کرنی ہوگی، کیونکہ یہ لوگ سستی، تاخیر یا بہانوں کو بالکل برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ کسی بھی ٹیم کا وہ انجن ہوتے ہیں جو ہمیشہ ہر وقت فل سپیڈ پر چلنا چاہتا ہے۔ ذرا ایک منظر تصور کریں۔ دفتر میں ایک بہت اہم پروجیکٹ کی ڈیڈ لائن بالکل سر پر کھڑی ہے۔ ٹیم کے ارکان پریشان ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 1-2 دن اور مل جائیں تو کام پرفیکٹ ہو جائے گا۔ لیکن وہاں ایک سرخ رنگ والا بے صبر باس کھڑا ہے، اور وہ غصے میں کہتا ہے مجھے اس سے غرض نہیں کہ تم کتنی کوشش کر رہے ہو، مجھے صرف نتیجے چاہیے۔ اور پتہ ہے اگلے لمحے کیا ہوتا ہے؟ وہ خود لیپ ٹاپ کھینچ کر بیٹھ جاتا ہے اور تیزی سے کام شروع کر دیتا ہے۔ ان کے لیے راستے کی محنت یا کہانیاں کوئی معنی نہیں رکھتی، انہیں بس فنش لائن کراس کرنی ہوتی ہے۔ اگر ہم سرخ لوگوں کی خصوصیات دیکھیں تو یہ بحث کرنے کے بجائے فیصلے کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ بہت تیز اور فیصلہ کن ہوتے ہیں۔ ان کا سیدھا سا ماننا ہوتا ہے کہ اگر راستہ صاف نظر آ رہا ہے تو بھائی سوچنا کیسا، چلنا شروع کرو۔ وہ نتائج اور طاقت کے متلاشی ہوتے ہیں، اور کسی بھی مشکل صورتحال میں بالکل ایک قدرتی لیڈر کی طرح فوراً کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ اب کئی بار ان کا یہ رویہ دوسروں کو ڈرا دیتا ہے اور لوگ انہیں بد مزاج سمجھنے لگتے ہیں،
लेकिन हकीकत यह है कि वो बदमिजाज नहीं होते, बस उन्हें चीज़ों के सुस्त होने से चिढ़ होती है। वो इस कार की तरह हैं जो अगर ब्रेक भी लगाए तो उसे लगता है कि उसका पेट्रोल ज़ाया हो रहा है। तीसरा हिस्सा पीला रंग, पुरजोश, तख्लीकी और महफिल की जान। अब जरा माहौल को हल्का फुल्का करते हैं क्योंकि हम पीले रंग की दुनिया में दाखिल हो रहे हैं। ये रंग है खुशमिजाज, बातूनी और बेपनाह तख्लीकी लोगों का। अगर हमने देखा कि सुर्ख लोगों की दुनिया नताइज से चलती है, तो याद रखें कि पीले लोगों की दुनिया जज्बात, तफरीह और हाई एनर्जी से चलती है। ये लोग किसी भी तारीक और बोरिंग कमरे में एक रोशन चमकदार बल्ब की तरह होते हैं। फर्ज करें एक बहुत ही संजीदा, थका देने वाली मीटिंग चल रही है। सुर्ख बॉस को जल्दी फैसला चाहिए, नीला बंदा बार बार डेटा और चार्ट्स मांग रहा है, और अचानक एक पीले रंग का साथी मेज पर हाथ मारकर बोल पड़ता है, सुनिए, मेरे पास एक बहुत ही मजेदार आइडिया है, क्यों ना हम इस बार कुछ बिल्कुल ही हटके ट्राई करें। बाकी सब इसे घूरने लगते हैं, इसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तब तक मुस्कुराकर बोलता रहेगा जब तक सबके चेहरों पर मुस्कुराहट ना आ जाए। इन्हें तवज्जो और दांत का बेहद शौक होता है। काम कितना ही बोरिंग क्यों ना हो, ये उसमें कोई ना कोई तफरीह ढूंढ ही लेते हैं। दरअसल पीले लोग बिल्कुल एक रंग बिरंगी पतंग की तरह होते हैं। वो मुस्बत, तखय्युलाती और पुरजोश होते हैं और बुलंदियों पर उड़ना जानते हैं, लेकिन अक्सर इनकी कोई एक सिमत नहीं होती। वो एक शानदार नए आइडिया के साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन रोज़मर्रा की रूटीन और बारीक तफसीलात से इतनी जल्दी बोर हो जाते हैं कि पहला काम मुकम्मल होने से पहले ही किसी और नई और चमकदार चीज़ के पीछे भाग पड़ते हैं। ये दूसरों को मुतासिर तो बहुत करते हैं, महफिल लूट लेते हैं, मगर फोकस करने में उन्हें वाकई जिद्दोजहद करनी पड़ती है। ये अक्सर बड़े पक्के वादे कर लेते हैं कि कल पक्का फ़ोन करूंगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आता। इनकी नीयत ख़राब नहीं होती, सच में, बस इनकी तवज्जो बहुत जल्दी भटक जाती है। चौथा हिस्सा सब्ज रंग, पुरअमन और साबिर। ये वो गोंद है जो हम सबको जुड़े रखती है। सुर्ख की इस तेज आग और पीले की तूफानी हवा के बाद अब वक्त है एक पुरसुकून, ठंडी और घनी छांव का। सब्ज लोग इस दुनिया के सबसे मुतवाज़िन, हमदर्द और पुरसुकून इंसान होते हैं, और ये वाकई वो गोंद हैं जो किसी भी टीम, रिश्ते और ख़ानदान को बिखरने से बचाते हैं। इन्हें स्टेज पर खड़े होकर तालियां बजवाने का कोई शौक नहीं होता। वो बस खामोशी से पस-ए-मंज़र में रहकर सबका ख्याल रखते हैं। जब सुर्ख और पीले लोग किसी मीटिंग में या हत्ता के घर के ड्राइंग रूम में जोर जोर से बहस कर रहे होते हैं और माहौल काफी गर्म हो चुका होता है, तो ये सब शख्स ही होता है जो बीच में आता है और निहायत नरमी, मुस्कुराहट के साथ कहता है कि देखें, आप दोनों की बात अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, चलो लड़ने के बजाय कोई दरमियानी रास्ता निकाल लेते हैं। उनका बुनियादी मकसद बस अमन और हमाहंगी कायम रखना होता है। उनका सीधा सा उसूल है कि भाई जब बात प्यार से हल हो सकती है तो खामखा झगड़ना क्यों। ये लोग कमाल के सामने यानी लिसनर होते हैं और दूसरों की फीलिंग्स का बेहद एहतराम करते हैं। ये लोग इंतहाई साबिर, काबिल भरोसा और मददगार होते हैं। अगर आप रात के 2 बजे भी इन्हें फ़ोन करें तो ये मदद के लिए हाजिर होंगे। ताहम हर कीमत पर झगड़ों और तनाज़ात से बचने की ये जो उनकी आदत है, ये बाज़ औक़ात उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन जाती है। किसी भी किस्म के तसादुम से बचने के लिए सब्ज़ लोग अक्सर अपने सच्चे जज्बात को अंदर ही अंदर दबा लेते हैं। उन्हें नहीं कहना बिल्कुल नहीं आता। वो दूसरों को खुश रखने के लिए खुद बेचैन रहते हैं। एक और बात, उन्हें अचानक तब्दीलियां बिल्कुल पसंद नहीं। रूटीन, इस्तेहकाम और सुकून ही उनके लिए सब कुछ है। इसलिए उन पर हुक्म चलाने के बजाय उनसे हमेशा प्यार से गुजारिश करनी चाहिए। पांचवां हिस्सा नीला रंग, मंतकी और महतात, एक ज़बरदस्त परफेक्शनिस्ट मुसब्बिर। अब हम अपने चौथे और आखिरी नफसियाती कमरे की तरफ बढ़ते हैं, जहां सुर्ख को एक्शन, पीले को जोश और सब्ज को सुकून चाहिए, वहां नीले रंग को सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चाहिए, और वो है दुरुस्तगी यानी परफेक्शन। ये लोग किसी भी महफिल या टीम के वो मोहतात साइंसदान होते हैं जो हर चीज़ को हक़ाइक़ और सबूत की ऐनक से देखते हैं। वो खामोश बैठे हर चीज़ का बारीक बीनी से जायज़ा ले रहे होते हैं। एक नीला शख्स कभी भी जज्बाती बातों या हवाई मफरूज़ों पर यकीन नहीं करता। अगर कोई मीटिंग में पूरे जोश से कहे कि मुझे बस अंदर से फीलिंग आ रही है कि ये काम बहुत अच्छा चलेगा, तो एक नीला शख्स अपना चश्मा ठीक करते हुए फ़ौरन पूछेगा, आपकी फीलिंग तो ठीक है, लेकिन सबूत कहाँ है? मुझे बिल्कुल दुरुस्त डेटा दिखाएं। किताब में एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है। फ़र्ज़ करें एक कमरे में एक पेंटिंग थोड़ी सी टेढ़ी लटक रही है। सुर्ख शख्स को उसकी परवाह नहीं होगी, पीला उसके रंगों में गुम हो जाएगा, सब सोचेगा कि कोई और आके ठीक कर देगा। लेकिन नीला शख्स, वो तब तक आराम से नहीं बैठ सकेगा जब तक उठकर उस पेंटिंग को बिल्कुल 100% सीधा ना कर दे, क्योंकि बेतरतीबी उनके लिए एक संगीन जुर्म है। नीले लोगों के साथ बातचीत करते हुए एहतियात बड़ी ज़रूरी है। वो कुदरती तौर पर तफसीलात की गहराई में जाने वाले और तज्जियाती सोच के मालिक होते हैं। अगर आप उनके सर पर खड़े होकर कहेंगे कि जल्दी करो, तो वो शदीद परेशान हो जाएंगे।
क्योंकि उनके नज़दीक जल्दी का सीधा सा मतलब है गलतियां करना, और गलतियां उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। उनके लिए हर चीज़ मरहलावार, मुनज़्ज़म और परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि वो हक़ाइक़, सबूत और उसूलों के पाबंद होते हैं। वो जल्द या शायद जैसे गोलमोल अल्फाज से सख्त नफरत करते हैं। उनके लिए जज्बात से ज़्यादा लॉजिक अहम है। जब तक आप उन्हें ठोस हक़ाइक़ नहीं देंगे, वो आपकी बात पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। छठा और आखिरी हिस्सा, हम-आहंगी के लिए रंगों का मिलाप, अपनी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना। तो हमने चारों रंगों की दुनिया सैर कर ली, लेकिन यहाँ सबसे अहम बात यह है कि हकीकी दुनिया में कोई भी शख्स मुकम्मल तौर पर सिर्फ 100% एक ही रंग का नहीं होता। हम सब इन मुख्तलिफ रंगों का एक खूबसूरत मुरक्कब हैं। असल जादू तब होता है जब ये मुख्तलिफ जहन आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं। कभी ये मिलकर एक कमाल की टीम बनाते हैं और कभी इनका मिलाप एक बड़े धमाके का सबब बन जाता है। कामयाब ताल्लुकात का राज इसी में है कि हम अपनी बातचीत की फ्रीक्वेंसी को दूसरों के रंगों के मुताबिक ढालना सीख लें। ज़रा देखिए कि कैसे एक ही जुमला, एक ही बात दो मुख्तलिफ जहनों में बिल्कुल उल्टा रद्द-अमल पैदा करती है। फ़र्ज़ करें दफ्तर में कोई ऊंची आवाज़ में कहता है, चलो जल्दी करो। अब जो सुर्ख रंग वाला शख्स है वो उसे ग्रीन सिग्नल, एक मुस्बत इशारे के तौर पर लेता है। उसे लगता है कि वाह, आखिरकार अब कुछ एक्शन होगा। लेकिन बिल्कुल उसी वक्त उसी कमरे में बैठा एक नीला शख्स इसी जुमले को सुनकर शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हो जाता है। वो घबराकर सोचता है कि लो भाई, हम जल्दबाजी में अब ज़रूर कोई बड़ी गलती करने वाले हैं। ये मिसाल बिल्कुल साफ साबित करती है कि मसला उस जुमले में नहीं था, बल्कि सुनने वाले के दिमागी फिल्टर में था। जरा एक और जबरदस्त मिसाल देखते हैं। एक बिल्कुल सादा सा तारीफी जुमला, आपका काम बहुत दिलचस्प है। अब पीला शख्स जो हमेशा दाद और तालियों का भूखा होता है, उससे अपनी शानदार तख्लीकी सलाहियतों का एतराफ समझेगा और खुशी से फूले नहीं समाएगा कि वाह, मैं वाकई बहुत तख्लीकी हूं। जबकि दूसरी तरफ सब्ज शख्स जो हमेशा खामोशी से पीछे रहकर मेहनत करता है, इस बात पर एक गहरा सुकून महसूस करेगा और सोचेगा, कितनी अच्छी बात है कि चलो किसी ने तो मेरी खामोश मेहनत पर गौर किया। यही वजह है कि ये जानना बेहद जरूरी है कि सामने वाला किस रंग का है, ताकि हमारी बात उसी की जबान और उसी की फ्रीक्वेंसी पर समझी जाए। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि रोजमर्रा की इन उलझनों और झगड़ों से बचा कैसे जाए। इसका हल इन 3 आसान मगर इंतहाई ताकतवर इकदामात में छुपा है। पहला कदम यह है कि जब भी बातचीत हो तो फौरन अपना मौक़िफ़ मनवाने के बजाय खामोश होकर सुने कि सामने वाले की फ्रीक्वेंसी क्या है। क्या उसे रफ्तार चाहिए, मज़ा चाहिए, सुकून चाहिए या हक़ाइक़? दूसरा कदम यह है कि उनकी बातों से उनका बुनियादी रंग पहचानें। और तीसरा और सबसे अहम कदम, अपने गुफ्तगू के अंदाज को थोड़ा सा तब्दील करके उनके मुताबिक ढाल लें। और याद रखें, ये कोई हार मानना या समझौता नहीं है, बल्कि ये एक ज़बरदस्त स्मार्ट एडजस्टमेंट है। किताब का सबसे खूबसूरत सबक जिस पर मुसन्निफ थॉमस एरिक्सन बहुत जोर देते हैं, वो ये है कि लोग मुश्किल नहीं होते, वो बस मुख्तलिफ होते हैं। ये एक जुमला हमारी सोच को मुकम्मल तौर पर बदल सकता है। जब ये बात दिल में उतर जाए कि सामने वाला अगर हमारी बात नहीं समझ रहा, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि वो अहमक या बेवकूफ़ है। शायद वो बस किसी दूसरे रंग की दुनिया से ताल्लुक़ रखता है। सुर्ख शख्स एक्शन चाहता है क्योंकि वो सीधा मुस्तकबिल देखता है। पीला शख्स खुशी बांटता है क्योंकि वो ज़िंदगी को एक जश्न समझता है। सब्ज शख्स अमन चाहता है क्योंकि उसे रिश्तों में सुकून मिलता है। और नीला शख्स वजाहत मांगता है क्योंकि वो हर चीज़ को कामिल और बेऐब देखना चाहता है। दरअसल ये मुख्तलिफ ज़ाविये ही तो इस दुनिया को इतना खूबसूरत और मुतवाज़िन बनाते हैं। तो अब इंसानी रवैयों के इस रंगीन और दिलचस्प सफ़र के इख्तिताम पर ज़रा एक लम्हे के लिए रुक कर सोचिए और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का तज्जिया कीजिए। वो कौन सा गालिब रंग है जो आपकी अपनी शख्सियत में झलकता है? क्या वो सुर्ख है, पीला, सब्ज या नीला? और वो कौन से रंग हैं जो घर वालों, दोस्तों और दफ्तर के साथियों में नुमायां हैं? जब ये पहचान हो जाएगी तो यकीन जानिए, वो तमाम लोग जिन्हें कभी नासमझ, ज़िद्दी या परेशान कुन समझा जाता था, अचानक बिल्कुल वाज़े और मंतकी लगने लगेंगे। उम्मीद है किताब के इस जायजे ने इंसानी रवैयों और नफ्सियात की इस उलझी हुई दुनिया को समझने में एक बिल्कुल नई खिड़की खोली होगी। इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा, क्योंकि अपने और दूसरों के रंग पहचानना ही पुरसुकून और बेहतरीन ताल्लुकात की कुंजी है।